Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is biotechnology. Now, what is biotechnology? Biotechnology, it is an applied branch of biology. The term biotechnology was first used by Karl Kirke in 1990 to describe a process for large-scale production of pigs. It has been broadly defined as the development and utilization of biological forms, products, or processes for obtaining maximum benefits to man and other forms of life. So, what is biotechnology? Biotechnology means what? Using of biological forms. Means biological forms means what? Any microorganism, any plant, animal, then products and processes for the obtaining maximum benefit to the human and other forms of life. So according to Organization of Economic Cooperation and Development, it is an application of scientific and engineering principle to the processing of materials by biological agents to provide goods and service to the human welfare. मीन्स इन शॉर्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यूजिंग ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करते हैं जिससे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। इट कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है बायोटेक्नोलॉजी के। एग्री बायोटेक, देन बायो हेल्थ, बायो एनर्जी, बायो इंडस्ट्रियल। तो ये डिफरेंट एरियाज है जहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट सर्विसेज। सी, it uses scientific principles of microbiology, genetics, biochemistry, chemical engineering, mathematics, statistics, computers, industrial processes, etc. Biological agents means plant and animal cells, microorganisms, enzymes और their products। तो यहाँ पर biological organisms में ये सब include होते हैं। History of origin of biotechnology is as old as human civilization. Development of biotechnology in terms of its growth occurred in two phases: traditional biotechnology and modern biotechnology. Now let's we see the what is traditional biotechnology, that is old biotechnology. It was primarily based on fermentation technology using microorganisms as in the preparation of curd, ghee, soma, vinegar, yogurt, cheese making, wine making, etc. तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें या ये सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। इट इज़ नथिंग बट द बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इन दैट बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं। इट बिकम एन आर्ट ऑफ किचन इन इंडियन हाउसेस। इट वॉज मोर एन आर्ट दैट services science. People were not aware as to how exactly the process occurs and the organisms causing these process. The contribution made by several chemists, biochemists and microbiologists over the time would explain the mechanism of this process and also the nature of microorganism causing the process. तो ये हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस एक्चुअली क्या करते वो पहले किसी को पता नहीं था, या हाउस में हम लोगों को सबको पता नहीं रहता। बट बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सब फाइंड आउट किया है कि क्या एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। सी, now what is modern biotechnology? During 1970, a new technique of recombinant DNA technology, that is rDNA technology, was developed and then established by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1973। तो ये न्यू टेक्निक डेवलप किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो नाम में ही है रिकॉम्बिनेंट मीन्स रिकम्बाइन किया है। तो यहाँ पर दो
स्पीशीज के डीएनए एक साथ ज्वाइन करते हैं, इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उससे बेटर या बेनिफिट मिलता है ऐसे। द टेक्निक परमिट्स टू चेंज मॉडिफाई जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। The combination of biology and production technology based on genetic engineering evolved into modern biotechnology। समझ में आया? तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मेन अपना प्रोसेस कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। There are two major features of technology that differentiate modern biotechnology from the old biotechnology. First क्या है देखो, capability of science to change the genetic material for getting new specific products through recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, microarrays, cell structure, culture and fusion and bioprocessing। ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया जाता है या चेंज किया जाता है फॉर द बेटर प्रोडक्ट। देन ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। नाउ द कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, food industries, etc. are also focusing attention to produce biotechnology based products। Principles and process of biotechnology. Modern biotechnology is based on two core techniques, that is genetic engineering and chemical engineering। Now let's we see what is genetic engineering। Genetic engineering deals with alteration of genetic material, that is डीएनए एंड आरएनए को क्या करते हैं? अल्टर करते हैं। मीन्स उनका जो नॉर्मल सीक्वेंस रहता है उसको चेंज करते हैं, वहाँ पर जीन डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं एंड या वहाँ नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं। एंड केमिकल इंजीनियरिंग डील्स विद द मेंटेनिंग sterile environment for manufacturing variety of useful products including vaccine, antibodies, enzymes, organic acid, vitamins, therapeutics, etc। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करता है? स्टराइल एनवायरनमेंट मेंटेन रखता है फॉर द डेवलप, जो करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स, जैसे कि वैक्सीन्स है, देन ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स है, उसके लिए। Genetic engineering is defined as the manipulation of genetic material towards a desired end and in directed and predetermined way using in vitro process। तो इन शॉर्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जीन अल्टर करते हैं, किसके लिए? हमें जैसे जीन चाहिए या जैसे कैरेक्टर चाहिए और जैसे प्रोडक्ट चाहिए बनना हमारा, तो उस हिसाब से जीन को अल्टर करते हैं बाय द टेक्निक्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मैन्युपुलेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व, अभी मैन्युपुलेट करते हैं जीन्स को, मीन्स क्या करते हैं? सी, रिपेयरिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन और रिप्लेसिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय हेल्दी जीन्स और नॉर्मल जीन्स। ये फर्स्ट उसका पॉइंट है। देन आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग ऑफ अ टोटली न्यू जीन, टोटली न्यू जीन सिंथेसिस करते हैं। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू अ न्यू लोकेशन और इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर करते हैं जीन। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैनिपुलेट करते हैं मीन्स वही चेंज करते हैं या अल्टर करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, कंबाइनिंग ऑफ जीन्स from two organisms, that is recombination। And last one is altering the genotype, that is gene cloning, etc। Genetic engineering is alternatively called recombinant DNA technology or gene cloning। उसको ही अनदर नेम क्या है? rDNA technology, that is recombinant DNA technology और gene cloning। तो इतने सारे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या है? मेथड से जहाँ जहाँ जीन को अल्टर करते हैं।
Genetic engineering is the process of manually adding new DNA to an organism. The goal is to add one or more new traits that are not already found in that organisms. Examples of genetically engineering organisms currently on the market include plants with resistance to some insect, plants that can tolerate herbicides, and crops with modified oil content. तो यहाँ जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो जीन रहता है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनका जीन अल्टर किया हुआ रहता है. तो बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट को रेजिस्ट करते हैं या हर्बिसाइड्स रहते हैं. तो एंड क्रॉप विथ मॉडिफाइड ऑयल कंटेंट. तो see some examples. See example of genetic modification, that is GM, genetic modification. फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, onco mouse. See modified lab mouse used for cancer research. Then next is xenotransplantation, transplant of tissue from one species to another, modified for human acceptance. And third है GMOs, genetically modified organisms, both animal and crop modified to be less susceptible to disease, have higher yield etc. and for biofuel creation. यहाँ पर ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स क्रिएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जो खुद ही रेजिस्टेंट हो to insects and another diseases को. These are the examples of genetically modified organisms and plants. तो ये कैसे करते हैं, सी techniques of gene cloning and rDNA technology. In gene cloning, a gene of known function can be transferred from its normal location into a different cell via suitable vector. The transfer gene is replicated normally and is handed over to the next progeny. सी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीन ट्रांसफ़र करते. तो ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ तो चाहिए. तो जो जीन ट्रांसफ़र करते दोज आर कॉल्ड एज वेक्टर्स. समझ में आया. तो वेक्टर्स क्या रहेंगे, आइदर प्लाज्मिड्स रहते हैं. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आर प्लाज्मिड, जो बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड, वो एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं. देन बैक्टीरियोफेज जो रहते हैं, बैक्टीरियोफाजेस, वो एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं जो जीन कैरी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में. सी tools and techniques for gene cloning and or rDNA, that is recombinant DNA technology. The basic requirements for these techniques are, first क्या दिया है, different instrument devices. तो first देखो, macromolecules such as DNA, RNA, proteins are synthesized in the living cell which vary in their molecular weight, solubility, presence of charges, absorbance of light, etc. Several techniques are also used to isolate and characterize the macromolecules. तो सबसे पहले हमें rDNA टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, जीन चाहिए और डीएनए चाहिए. तो वो डीएनए आइसोलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मशीनरी चाहिए. The size of different types of molecules varies and therefore their molecular weight also vary. The technique used on the basis of molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange chromatography, spectroscopy, mass spectrometry, electrophoresis etc. तो जो डिज़ायर जीन हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल बैक्टीरियल सेल है, उसके भी सेल में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डीएनए होता है. तो वो डीएनए सेपरेट और आइसोलेट करने के लिए सर्टन टेक्निक यूज़ करना पड़ता है. और ये सारे टेक्निक्स यहाँ पर दिए हुए, उसमें से आपको फर्स्ट स्टडी करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस.
See, what is electrophoresis? Electrophoresis is the separation of charged molecule by applying an electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होते हैं, डीएनए सेपरेट होते हैं. इट इज़ अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स. ये तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं. डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज माइग्रेट्स टू एनोड. डीएनए के ऊपर क्या रहता है, ऑलवेज निगेटिव चार्ज रहता है. अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर आप देखोगे डीएनए का तो उसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है और वो एनोड मीन्स पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज जहाँ रहता है वहाँ माइग्रेट होता है. स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड दस सेपरेट फास्टर. जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहेंगे डीएनए के वो क्या होते हैं, फास्ट मूव होते हैं दैन द लार्जर मॉलिक्यूल. और ये स्मॉल एंड लार्ज कैसे होते हैं, जो भी एंटायर डीएनए रहता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो उसको कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अप्लाई करते हैं. अंडरस्टूड. एंड बिकॉज ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए स्ट्रैंड रहता है वो कट डाउन होता है इन द डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट जो स्मॉल रहेंगे वो फास्ट सेपरेट होंगे और जो हेवी रहेंगे वो थोड़ी लो मीन्स उनका जो रहता है ट्रांसफ़र का रेट वो कम रहता है. फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी यूज़ ऑफ अगार रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन पेज, SDA page are the different methods of electrophoresis. See the diagram of electrophoresis. फर्स्ट दिख रहा है आपको पावर सप्लाई, देन कैथोड एंड एनोड पॉइंट है. एट द कैथोड एंड सी वहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर, वेल एंड सैंपल. तो ये जो वेल दिख रहे हैं यहाँ पर डार्क ब्लू का स्काई ब्लू कलर के मीन्स जेल का स्लैब रहता है एक और उसमें वेल क्रिएट करते हैं. वेल क्रिएट करते हैं मीन्स जेल के स्लैब में ऐसे वेल बनाते हैं और उसमें सैंपल पोर करते हैं और पोर करने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एगारोस जेल में. और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ कुवेट में जो भी मिक्सचर रहता है, वेल में जो भी मिक्सचर रहता है वो सेपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बैंड पैटर्न. सी द सेकेंड डायग्राम. हाई मॉलिक्यूलर वेट स्पीशीज़ ऊपर ही है एंड लो मॉलिक्यूलर वेट एनालाइट्स नीचे है. मीन्स वो फास्ट मूव होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, मेक जेल. जेल का स्लैब मीन्स थिन शीट प्रिपेयर करते हैं और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो शीट रखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. देन सेकेंड, ऑब्टेन प्रिपेयर डीएनए सैंपल. वो जो छोटे छोटे 3 ABC वो जो ट्यूब्स दिख रहे दोज आर कॉल्ड एज कुवेट्स एंड उस ट्यूब्स में डीएनए सैंपल रखते हैं. वो डीएनए सैंपल ट्रीट किया हुआ रहता है मीन्स इट ट्रीटेड विथ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. देन थर्ड पॉइंट क्या है, लोड सैंपल इनटू द जेल. वहाँ पर वेल क्रिएट करते हैं मीन छोटे छोटे खड्डे जैसे क्रिएट करते हैं जेल के ऊपर और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट, माइक्रोपिपेट का यूज़ करके ये डीएनए सैंपल जो है वो पोर करते इनटू ईच वेल. देन डीएनए के ऊपर क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है. नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेट फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये सैंपल लोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है अपना चार्ज अप्लाई करना. तो वहाँ पर करंट ऑन करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए सेगमेंट्स क्या होते हैं, जो वेल में हम लोगों का मिक्सचर है वो
जेल स्लैब के ऊपर क्या होता है, रन होता है, मीन्स डीएनए मूव होते हैं ऑन द जेल स्लैब। तो फिफ्थ डायग्राम देखो, स्टेन डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड मेजर डिस्टेंसेस। आपको फोर्थ में ही दिखाई दे रहे हैं, डीएनए सेपरेट हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंड पैटर्न। और फिफ्थ में उनको क्या किया है, रेडियो लेबल्ड किया है, स्टेन करते हैं। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ट्रैवल फास्टर एंड देयरफॉर फार्दर। तो जो भी स्मॉलर लो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो एकदम दूर जाएगा वेल से, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो उधर ही रहेगा। प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड कर्व, डिटरमाइन द फ्रैगमेंट साइज। और फ्रैगमेंट साइज उसका फिर डिटरमाइन करते हैं बाय स्टैंडर्ड कर्व एंड कोरिलेट डिस्टेंस टू द साइज। ये क्या है, डीएनए सेपरेशन, डीएनए जो है वो सेपरेट करते हैं। समझ में आया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? Here we have completed gel electrophoresis. In next lecture we will see the another technique, that is polymerase chain reaction. Student, please go through the textbook and if any doubt please ask me. Thank you.